सर, देश का गरीब जो आज भूखा सो रहा है, वो देश के प्रधानमंत्री मोदी से पूछ रहा है कि मैं रात में और मेरे बच्चे भूखे सोते हैं, मगर देश में 215 बिलियनर पैदा हो गए। कब तक गरीब का पैसा बिलियनर को जाएगा? वो गरीब मोदी सरकार से सवाल कर रहा है। देश का नौजवान मोदी सरकार से सवाल कर रहा है कि मैं खेतों में काम कर रहा हूं, मेरी तनख्वाह में इजाफा नहीं होता। आज 45.6% नौजवान खेतों में काम कर रहे हैं। क्या मोदी सरकार जानती है कि नरेगा में फाइनेंशियल ईयर 22 में 8 महीने में 90 मिलियन लोग काम कर रहे हैं? क्या यह इकोनॉमी अच्छी है या इकोनॉमी की बर्बादी को बताता है? আসসালামু আলাইকুম। দর্শক, রিসেন্টলি আসাদুদ্দিন ওয়াইসি পার্লামেন্টে এমন একটি ভাষণ দিয়েছেন গোটা ভারতবাসীর জন্য, গোটা ভারতবাসীর পক্ষে, শুধু মুসলমান নয়, হিন্দু, ইয়াহুদি, খ্রিস্টান, সাঁওতাল, সমস্ত মানুষের পক্ষে, সমস্ত মানুষের হকের পক্ষে যেভাবে বিজেপি সুপ্রিমো মোদিকে মোদির বিরুদ্ধে প্রশ্নগুলো তুলেছেন, তিনি যে গোটা ভারতবর্ষ চালাচ্ছেন তার বিরুদ্ধে যে প্রশ্নগুলো তুলেছেন তা দেখে পার্লামেন্টের স্বয়ং স্পিকার তার দিকে হা করে তাকিয়েছিল। স্পিকার স্বয়ং তার দিকে হা করে তাকিয়েছিল যে এত সুন্দর ভাষণ তিনি জাতির পক্ষে, গোটা ভারতবাসীর পক্ষে দিয়েছিলেন। শুধু স্পিকার নয়, গোটা পার্লামেন্টের যতগুলো সদস্য ছিল সকলেই তার দিকে হা করে তাকিয়েছিল, কারো কিছু বলার ক্ষমতা হয়নি। মানে তিনি গোটা ভারতবাসীর জন্য, গোটা ভারতবাসীর পক্ষে যেভাবে প্রশ্নগুলো তুলেছেন, আমরা সকলেই জানি যে গোটা পার্লামেন্টে যতগুলো সদস্য থাকে সমস্ত সদস্যদের মধ্যে আসাদুদ্দিন ওয়াইসি হচ্ছেন একজন নাম করা স্পিকার। মানে তার মতো বক্তা বা তার মতো বলনেওয়ালা হয়তো খুব কমই রয়েছে। আপনারা সকলেই জানেন, আমার চাইতে হয়তো আপনারা খুব ভালো দেখেছেন। তো রিসেন্টলি এই পার্লামেন্টে যেভাবে তিনি যুবকদের জন্য, তারপরে নারীদের জন্য, মুসলমান এবং পিছিয়ে পড়া সমস্ত মানুষের জন্য যেভাবে তিনি তাদের হকের জন্য যেভাবে তিনি কথাগুলো বলেছেন, প্রশ্নগুলো তুলেছেন, সেটা কিন্তু সত্যি প্রশংসার যোগ্য। তো আমার মনে হয় যে এই ভিডিওটি আমাদের সকলের দেখা প্রয়োজন, কারণ এই ভিডিওর মধ্যে অনেক নলেজ আছে, অনেক কিছু জানার আছে, অনেক কিছু একজন ভারতীয় হিসেবে আমাদের সাংবিধানিকভাবে আমাদের কি কি হক রয়েছে, কি কি অধিকার রয়েছে, আমরা কি কি পেতে পারি, কি কি ফ্যাসিলিটিস আমরা সরকারের পক্ষ থেকে ফ্রিলি পেতে পারি, বিষয়ে কিন্তু আমরা অধিকাংশ মানুষ অজ্ঞ, আমরা কিন্তু জানি না। তো সে সম্পর্কে একটা ভালো ধারণা পেতে গেলে অবশ্যই কিন্তু এই ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখা দরকার। তো আপনাদের প্রত্যেকের কাছে অনুরোধ, বিশেষ করে আসাদুদ্দিন ওয়াইসির রিসেন্টলি যে বক্তব্যটা, এই বক্তব্যটা আপনারা সকলেই মনোযোগ সহকারে শেষ পর্যন্ত দেখবেন এবং বেশি বেশি আপনার বন্ধু বান্ধবদের শেয়ার করবেন, যাতে করে সবাই এই বিষয় সম্পর্কে অবগত হতে পারে এবং সচেতন হতে পারে। এই ভিডিওটি দেখলে আমার মনে হয় একটু হলেও আপনার চোখ খুলবে। তো চলুন আমরা সেই ভিডিওটি দেখে নিই। सर, देश का गरीब जो आज भूखा सो रहा है, वो देश के प्रधानमंत्री मोदी से पूछ रहा है कि मैं रात में और मेरे बच्चे भूखे सोते हैं, मगर देश में 215 बिलियनर पैदा हो गए। कब तक गरीब का पैसा बिलियनर को जाएगा? वो गरीब मोदी सरकार से सवाल कर रहा है। देश का नौजवान मोदी सरकार से सवाल कर रहा है कि मैं खेतों में काम कर रहा हूं, मेरी तनख्वाह में इजाफा नहीं होता और मेरी उसमें इजाफा होता है। PLFS सर्वे कहता है कि 42% से आज 45.6% नौजवान खेतों में काम कर रहे हैं। क्या मोदी सरकार जानती है कि नरेगा में फाइनेंशियल ईयर 22 में 8 महीने में 90 मिलियन लोग काम कर रहे हैं? क्या यह इकोनॉमी अच्छी है या इकोनॉमी की बर्बादी को बताता है? क्यों आपने अब तक 15 रियासतों को 4,700 करोड़ रुपये बकाया नहीं दिया मनरेगा? सर, वहीं पर एक फौजी टूटे दिल के साथ देश के प्रधानमंत्री से पूछ रहा है कि आखिर आपने 8 साल में देश की इकोनॉमी को बर्बाद कर दिया, इसीलिए आपने अग्निवीर को लाया। आज वो सिपाही का दिल टूटा हुआ है जिसने अपनी जवानी चीन और पाकिस्तान के फौजों के खिलाफ आंखें डालकर खड़ा हुआ था। आपने इकोनॉमी को बर्बाद कर दिया और अग्निवीर देश के नौजवानों को मुकद्दर बनाकर देश की सुरक्षा से आपने खिलवाड़ किया है। देश के मासूम बच्चे जो स्कूल को जाते हैं, देश के प्रधानमंत्री से पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी, आपने हमारे किताबों पर, पेंसिल पर, पेन पर 18% GST क्यों लगा दिया? सर, देश के इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स प्रधानमंत्री से पूछ रहे हैं कि हमने कानून बनाया कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 2 और 6% के दरमियान होगा, आखिर क्यों वो 7% हो गया? WPI 15% हो गया। सर, देश के 40 करोड़ गरीब से गरीब देश के प्रधानमंत्री को खुलकर जवाब दे रहे हैं और पैगाम पहुंचा रहे हैं कि इन्फ्लेशन करप्शन के बराबर है। वो 40 करोड़ गरीब देश के प्रधानमंत्री से कह रहे हैं कि आपकी सरकार में और यूपीए की सरकार में कोई फर्क नहीं है, इन्फ्लेशन उनकी नजर में करप्शन है। सर,
देश के वो गरीब आदमी जो 95% एफडीज में डालते हैं, वो देश के प्रधानमंत्री से पूछ रहे हैं कि आपकी सरकार के गलत फैसलों से 7% इन्फ्लेशन की वजह से वो 3.5% पर एनम उनको लॉस हो रहा है। सर, वहीं पर देश के गरीब प्रधानमंत्री से पूछ रहे हैं कि हम आपकी गलत पॉलिसियों की वजह से आटा, बिस्किट, टूथपेस्ट कम खरीद रहे हैं। देश के वो लोग जो कर्जों पर घर और गाड़ी लिए थे, उनके 1% लोन इजाफा हो गया, क्योंकि आपकी तरफ से गलत पॉलिसियों की वजह से आरबीआई ने 0.9% बढ़ाया तो बैंक्स ने 1% बढ़ा दिया। इस देश का किसान मोदी सरकार से पूछ रहा है कि 31 पैसे के लिए मुझे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एनओसी नहीं देता है, मगर आपकी सरकार ने ऐसे बड़े बड़े डिफॉल्टरों को 1,45,240 करोड़ रुपए आपने राइट ऑफ कर दिए बैड लोन के लिए। देश का गरीब, देश के सर आई एम कंक्लूडिंग, देश का गरीब देश के प्रधानमंत्री से पूछ रहा है कि आखिर वो कौन सा बड़ा सरमायादार है जिसका नाम ए से शुरू होता है। 14,000 करोड़ दिया जाता है, 12,000 करोड़ दिया जाता है, एनपीए होता है। ये कब तक ये स्कैम होगा? देश को बेवकूफ बनाते रहेंगे। सर, एफडी रेट्स 0.1% risen, but banks is making 0.8, 0.8%. What is this? And in conclusion, sir, मैं खत्म करने से पहले याद दिलाना चाहता हूं कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने किसी एक बजट स्पीच में एक शेर पढ़ा था, यकीन हो तो कोई रास्ता निकलता है, हवा की ओट भी लेकर चिराग जलता है। मैं कहना चाहूंगा कि फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा, आपने गरीबों के चिराग को गुल कर दिया, आपने दौलतमंदों की हवा में इजाफा कर दिया, आपने गरीबों के रास्ते पूरे बंद कर दिए। और शायर ने सही कहा था देश के प्रधानमंत्री के बारे में कि जो कहता था तारे तोड़कर लाऊंगा, जो कहता था तारे तोड़कर लाऊंगा, उसने आसमान ही गिरा दिया मुझ पर। सर, ये इनकी पॉलिसी है। सर, कंक्लूड कर रहा हूं, ये इनकी पॉलिसी। सर खत्म करें। ये मोदी सरकार की पॉलिसी है। देख लीजिए सर, सिर्फ 50 एमपी बैठे, इनको प्राइस राइज से मतलब नहीं है, मगर देश की जनता का आक्रोश समझिए, गुस्सा समझिए। आपको समझना पड़ेगा, आज गरीब मायूस है सरकार से। थैंक यू सर। ऑनरेबल मेंबर श्री हटाने वास्ते सरकार कोई ठोस उपराले करे। थैंक यू। ऑनरेबल मेंबर श्री असाउद्दीन ओवैसी। सर, बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरम कि आपने बोलने का मौका दिया। मैं मोदी सरकार से जानना चाहता हूं कि देश की माएँ आपसे सवाल कर रही हैं कि आपने उनके मासूम बच्चों को दूध और अंडे से क्यों महरूम करके रख दिया। देश का वो ट्रक ड्राइवर जो नौजवान है आपसे सवाल कर रहा है, उसकी आमदनी 2014 से नहीं बढ़ी, मगर उसके खर्चे डबल हो गए। देश का वो प्लम्बर